when onion prices goes up and we buy so many, मतलब 5-7 किलो onion ले आते हैं and we keep it, and no sooner favorable condition is there, the onion start germinating and giving rise new plant. Same is with garlic, same is with potatoes. ठीक है? So all these are vegetative propagation, and vegetative propagation is exploited by the farmers. As I said, the onion may have 4 or 5 nodes, so the farmer cut it in such a way that each piece has got 1 node, and then he put them far. If it is not so, naturally if the plant would have, the potato would have been there in the soil, so only that one place only for 4-5 plant would have come, and only that plant which was having better facility, better nutrition, better light availability, that would have survived, rest all would have died. Okay? So that is the case of potato. In case of ginger also, there are nodes which you can see, even in your book it is given the buds which are showing in the nodes, and from these buds the new plant comes. So again farmer what he does, that the big onion is ginger is there, he cuts into the pieces, and only the node part is he puts facing upward, and then leave it. So within few days the new plant comes up. Okay. Bryophyllum is a case in which the vegetative propagation is done with the leaves. So the notches of the leaves that give rise new plants. Okay, and then this is the figure number E. Okay, in the figure E you can see it is water hyacinth, and water hyacinth, what is the other name of water hyacinth? Acornia. It is commonly known as terror of Bengal. तो ये टेरर ऑफ बंगाल और एकॉर्निया और वाटर हाइसियंथ सब एक ही चीज़ के नाम है. और कोटा की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम जानते हैं. इन कोटा देर इज़ अ KST, है ना, किशोर सागर तालाब, विच इज़ अ फेवरेट प्लेस फॉर ऑल दीज यंगस्टर्स. ये बहुत सारे जाते हैं बच्चे वहाँ पे. एंड यू सी इन द KST द जो तालाब है उसमें दिस एकॉर्निया इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग. ठीक है. तो कोई अंग्रेज किसी ज़माने में इसको ले आया था कहीं से बाहर से. Now that was the time when English used to rule in so many different countries. So some of the English must have got ये English, उसको इसका फ्लावर बहुत अच्छा लगा, मो कलर का, पर्पलिश कलर का. उसने कहा यार ये ब्यूटीफुल है, हाउ ब्यूटीफुल द लेक इज लुकिंग और अपीयरिंग. So without knowing the consequences, he just took one piece of that water hyacinth and put into the East India Company was working in Calcutta, so there he put. And since in the water bodies, all the water bodies of those this in West Bengal, that has been badly affected by it, and that's why the name of terror of Bengal is given to it. And slowly it spread to the other places. Okay? So it is one silly mistake of one English, the whole country is bearing it. Okay? So what happens in this? The plant is that the part of the plant which we see above is actually leaves. The leaves are spongy leaves, and then there is the stem is underwater. ये water है, underwater. It grows after some time. Again it gives the leaves from its node and the roots here. Okay? So it keep on growing. From each node, the new leaves and new roots are here. So if you cut it from here or cut it from here, and you just put it in the water other place, again it will start growing. Okay. Now in case of sugar cane, again you see vegetative propagation by stem. Sugar cane, ये sugar cane का हमारा, you might have seen in the sugar cane there are nodes. ठीक है. If you want to grow a sugar cane, you have to have at least 2 nodes. ठीक है. Which was not true in case of that water hyacinth. Water hyacinth में roots and leaves are coming out from the same nodes. यहाँ पे क्या हो रहा है? This lower node, when we cover it in the soil, the lower node will be giving rise roots, and the upper node will giving leaves, and फिर यहाँ से नया stem निकल जाएगा. ठीक है. तो stem cutting we put in case of क्या कहते हैं in the sugar cane or tapioca and all, then we have to do this way. Money plant will be growing by this method. मनी प्लांट का भी हम ऐसे एक छोटा सा स्टॉक ले आते हैं. तो
one stalk here has to be in water. So from where the roots will be coming out, and the other वहाँ से लीफ आ जाती है, जबकि अच्छी लगती है प्लांट के लिए. It is because of the beautiful shape of the leaves only we are going to monitor. Okay, so all these are the different example. ये अगावे दे रखा है कि यहाँ पे इसका नोड है, फिगर नंबर C. So all these are the examples of vegetative propagation. Vegetative propagation, as I said, it is the method of a plant to prevent it from the adverse condition. So they are having this. Can anybody tell me that what are the roots which are growing or coming out from the nodes of the plants known as? You can unmute and tell children if anybody want to say from that side. What are the names of the roots, or what are the types of roots known as which are coming out from the nodes of the stem? आपने से कोई बोलना चाहते हैं? These are called adventitious roots. The roots which are coming out of the nodes of the stem are called adventitious roots. ओके, तो ये एडवेंटेशियस रूट्स हैं. बहुत सारी टाइप के एडवेंटेशियस रूट्स अपन ने क्लास 11th में पढ़ी थी. कुछ बच्चे बोलते हैं हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी नहीं थी, हमको अच्छी नहीं लगती थी. अब अच्छा और बुरे से क्या है, अब हमने बायो लिया है तो हमको पढ़ना ही है ना. तो एडवेंटेशियस रूट्स जो होती हैं वो रूट्स होती है विच आर कमिंग आउट फ्रॉम द नोड्स. तो द क्रॉप रूट्स विच वी हैव सीन इन बैनियन, स्टिल रूट्स विच वी हैव सीन इन शुगर केन और इन प्रॉपर. ओके, तो स्टिल रूट आपने देखा, एंड अदर रूट्स विच आर देयर, सकिंग रूट्स इन होस्टोरिया. देन इन केस ऑफ इन दिस केस, तो ऑल दीज आर एक्चुअली द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट यू कॉल adventitious roots. Okay, and these are only helping in the giving rise new plant. Okay, so coming to the both, next is vegetative. अब यहाँ पे दे दिया, that is while animals and other simple organisms, the term asexual is used unambiguously. In plants, the term vegetative propagation is frequently used. In plants, the unit of vegetative propagation such as runner. Now what is runners? You might have seen the grass, दूध घास, पूरा हमारा ग्राउंड भरा पड़ा है घास से. Now, when we call a gardener, what he do? How he grow grass? वो क्या सीड डालता है क्या ग्रास के? नहीं ना, सीड नहीं डाल रहा. वो क्या करता है? He just bring a small piece, मतलब ग्रास का पैच कहीं से लेकर के आता है और उसको छोटी छोटी जगहों पे गाड़ देता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा पैच डाल दिया उसने, उसके काफ़ी सारे ग्रास हो गए. अगर जल्दी करना है तो मैं यही करेगा, छोटे छोटे पैचेस इन द ग्रासेस आर ऑलरेडी देयर, ही जस्ट पुट इट देयर. सो यही ग्रास के जो है स्टेम अंडर सॉइल हॉरिजॉन्टली दे ग्रो, एंड आफ्टर एवरी नोड दे गिव राइज न्यू लीव्स एंड न्यू रूट्स. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड दैट द एंटायर ग्राउंड इज कवर्ड बाय ग्रास. वी सी ओनली द लीव्स on the ground. The stems we are not seeing. The stem is underground. There are oxalic grass. There is another kind of grass in which the stem even grows on the soil. ठीक है, तो वहाँ हम बैठ करके इसको तोड़ते रहते हैं, मजा आता है हमको कट करके तोड़ने में. ठीक है, तो ये रनर्स हो गए, स्टोलन्स हो गए, है ना, ट्यूबर्स पोटैटो के होते हैं, ऑफसेट वाटर हाइसियंस के हो गए, बल्ब अनियन एंड गार्लिक के हो गए, सकर्स के वाले सकर्स हो गए. ठीक है, तो रनर्स एंड सकर्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं. स्टोलन जो होते हैं इन विच समटाइम्स द स्टेम इज वीक इनफ एंड इट बेंड्स एंड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मॉइस्चर सॉइल. इवन दैट कैन what you call money plant can also be an example of stolon, because the stem is very weak and it bends and it comes in contact with the soil again. Children, if you are not using, you have to answer anything, please keep your mic in off position. Ayush Kaushal, ठीक है, अभी ऑफ हो गया. Okay, you must have read about Terror of Bengal, तो मैंने आपको बता दिया. और फिर you are aware about the plants of potato, sugar cane, banana. बनाना कैसे उगता है? बनाना भी ऐसे ही है, ज़मीन के अंदर हॉरिजॉन्टली the root grows, sorry, the stem grows. ऊपर जो हम देख रहे हैं बनाना प्लांट के अंदर, दैट इज ओनली लीव्स.
The tree which we see, banana tree, actually not a tree. That is only leaves. ठीक है. Now in monocot जो होती है, there is no stalks. Monocot leaves के अंदर there is no stalk. Like dicot leaves में आप देख रहे हैं वहाँ पे बना रखा है जैसे यहाँ stalk आ रही है. अगर ये monocot है, अगर ये sugar cane है और अगर ये कोई क्या कहते हैं गेहूँ है, तो आज के देखेंगे ये पूरे एंटायर नोड से लीव्स निकल के आती है. The leaf is coming from entire node. तो बनाना इज ऑल्सो मोनोकोट प्लांट. तो उसका जो मेन स्टेम नीचे था उनमें से सारी लीफ निकल गए हैं, वो एक दूसरे को रोल कर देती हैं एंड इट अपीयर्स लाइक ए बनाना स्टेम व्हिच इज नॉट ए स्टेम एक्चुअली. Excuse me, sir. यस Sir, your voice is not clear. यार इतना अच्छा माइक लगाया था. हेलो अभी am I clear now? It is on बच्चे. Yes, sir, much better. मच बेटर. ओके स्नेहा. तो हमने देखा कि मतलब बनाना जो है व्हाट वी सी एक्चुअली इज एक्चुअली द लीव्स एंड द स्टेम रिमेन अंडरग्राउंड. तो वो स्टेम हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है. ईच प्लांट जो है बनाना का दैट विल डाई इन 1 year. इन सेवरल कस्टम हम लोगों के कई सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं वेयर वी यूज द बनाना स्टेम्स दैट स्टॉक वो जो अपने पास है पूरा उसको लेकर के कई बार सजावट के लिए काम में लेते हैं. सेवरल ऑफ आवर कस्टम्स. ठीक है. स्पेशली इन दोज प्लेसेस वेयर बनाना आर ग्रोन दैट इज इन द कोस्टल रीजन मे बी इन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका. ठीक है. These are the places where banana is commonly grown and there they are using it for some type of. Where we are using sugarcane, राजस्थान में दिवाली का टाइम आता है तो गन्ने की 1-2 डंडी लगा देते हैं वो लोग, किला लगाते हैं. ठीक है. फॉर एवरी वेडिंग, फॉर एनी फेस्टिवल दे आर यूजिंग. तो एक्चुअली द पार्ट विच यू आर सीइंग ऑन द दिस थिंग दैट इज द लीफ. तो ईच सिंस बनाना इज ऑफ 1 year तो वो तो मर जाएगा बट उसका नीचे से जो न्यू नया प्लांट निकल करता है. ठीक है. तो वंस यू ग्रो बनाना इन योर हाउस इट विल बी देयर एवरी ईयर. नया नया प्लांट आता रहेगा. ठीक है. तो ये हो गया बनाना. जिंजर, डहालिया. डालिया भी आपने देखा होगा. डालिया थोड़े दिनों पहले सीजन था. डालिया में क्या कहते हैं, शेवंती. अलग 2 different breeds are there. The small one and the small one come in bunch and the big one is comes in sole, अकेला. ठीक है. तो आप देख लीजिए डालिया, उसको भी क्या होता है that 1 year the plant dries when the unfavorable condition comes and after some time नीचे से नया प्लांट निकल करके आता है. ठीक है. तो दैट इज डालिया. तो हाउ दे आर कल्टिवेटेड? दे ऑल आर कल्टिवेटेड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. हैव यू सीन द प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स दैट इज द कॉल्ड आइज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर. तो ये सब मैंने बता दिया आपको. आई एम नॉट सिंपली वेस्टिंग माय टाइम इन ऑल दिस थिंग. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ आता है. इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गन दैट हैव रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए काफ़ी सारे तामझाम की जरूरत पड़ती है. वी हैव टू हैव सम स्पेसिफिक ऑर्गन्स. ऑर्गन नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है बट दे विल हैव रिक्वायर सम टाइप ऑफ द दैट इज गोनेड्स वेयर द gametes will be produced. They will have to produce gametes in large number. ठीक है. Especially if the fertilization is taking place in water or fertilization is taking place externally, then they require large amount of gametes. काफ़ी सारे gametes की जरूरत पड़ेगी. So that means energetically it is a simply wastage. लाखों के नंबर में गैमेट बनाए, फ्यूजन तो केवल 5 का हुआ. जिंदा तो केवल 2 ही बचे, बाकी सबको तो कोई खा गया या सूख गए, वो गर्मी में मर गए. ठीक है. सो दैट इज एनर्जेटिकली ए वेस्टेज बट इट इज बेटर बिकॉज इट इज ब्रिंगिंग वेरिएशन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपनी खासियत भी है बट इट इज ऑल्सो यू सी ह्यूमन बीइंग एवरी डे वी आर प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ स्पर्म्स. काम थोड़ी आ रहा है. ठीक है. तो इट इज सिंपली ए वेस्टेज. काफ़ी एनर्जी हमारी इसमें चली जाती है और ये प्रोसेस जो है दैट इज इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस. तो आगे बढ़ते हैं. दैट इज द हायर ऑर्गन जो होते हैं दे आर शिफ्टिंग टू द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है. जस्ट बिफोर ऑनसेट अपना देर आर सम एनिमल्स विच हैव एन एबिलिटी कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, एसेक्सुअल भी कर सकते हैं. तो वो क्या करते हैं ना, दे हैव एन एडवांटेज. वो क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते रहेंगे लेकिन जैसे ही उनका अनफेवरेबल कंडीशन आती दिखेगी तो दे विल स्विच ओवर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ दिस क्वेश्चन कम्स
दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड नंबर ऑफ टाइम कि वाई अ सर्टेन एनिमल जो हैं या सर्टेन ऑर्गेनिज्म विच कैन रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन switch over to sexual reproduction on the onset of adverse condition. So it is a method to bring variation so that in the adverse condition, when the adverse conditions are posed, at least some of them will be able to survive. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. You got a small pool. अपने घर में आपका जो है एक बड़ा सा टंकी है जिसके अंदर आप ऐसे पानी भर के रखते हैं so that you can put to the plants. From any source some one paramecium reach there. One paramecium जो है वो it will divide rapidly. तो 1 से 2, 4, 8, 16, 32 large number of paramecia will form. They all are reproducing by means of asexual reproduction. Unicellular asexually रहता है paramecia, वैसे sexual भी दिखाता है, पर हम मान के चलते कि all are asexual. और sexual भी करेंगे तो क्या? Because initially हमारे पास एक ही था, तो 1 से 2 बने वो exact copy थे. So there is no chance of variation. Anyway, तो अभी जितने भी पैरामीशियम वहाँ बने हैं, all the paramecia which are there in the water tank, they all are copied to one another. If one is unable to tolerate 45 degrees Celsius temperature, none of them will be able to tolerate. In a water body, suppose you had done chlorination. If one of the paramecium was not able to tolerate chlorine, none of them will be able to tolerate. All of them will die together. एक फील्ड जहाँ पर आपने एक ही पोटैटो से काफ़ी सारे पोटैटो बनाए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ऑल विल बी एग्जैक्टली अलाइक इन ड्यू टू वन पर्टिकुलर कंडीशन. इफ वन पोटैटो प्लांट डाई, you can expect that all other plants will also die because the conditions are same and the genetic capabilities are also same. But उसकी जगह अगर वहाँ पे sexual reproduction हो जाए, so what will happen? There will be variation. So the variation will save them from the adversity, at least some. Variation are not always good. हम ये नहीं कहेंगे कुत्ते के जितने बच्चे होते हैं वो सारे के सारे अच्छे हैं because they are sexually reproducing. We cannot say that all the human beings are always good because we are reproducing by means of sexual reproduction. Husband wife sexual reproduction के आउटकम है तो human being तो हमेशा अच्छे ही रहेंगे. नहीं, हमने देखे कलेक्टर के बच्चे भी बेकार होते हैं, कुछ भी नहीं करने वाले होते हैं. ठीक है, कईयों के अच्छे भले लोगों के बच्चे जो है वो मेंटली रिटार्डेड भी पैदा होते हैं. तो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल ऑलवेज गिव राइज गुड इंडिविजुअल, दैट इज नॉट गारंटी, बट एटलीस्ट वेरिएशन इज देयर एंड आउट ऑफ द वेरिएशन लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल विच आर फॉर्म, एटलीस्ट सम विल बी एबल टू सर्वाइव. दैट इज द ब्यूटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग विच आर देयर. ओके, सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग. तो यही है. तो देखिए वाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशन, एडवर्स कंडीशन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो तो एक जैसे कॉपी बनाएंगे, क्लोन बनाएंगे, वहाँ पर तो चांसेस सर्वाइवल के कम होंगे. बट हियर देयर विल बी अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एटलीस्ट 1 member, 2 member, 5 member, 100 member, 200 या 1000 members. ओके, तो विद दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी हो गया हमारा. वी आर डिस्कस लॉट अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेट अस स्टार्ट विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Now we have already discussed in the sexual reproduction in the beginning of the chapter when we are introducing the sexual reproduction. I said sexual reproduction is the type of reproduction in which gametes are involved. 2 gametes are involved. Again, now those gametes can be termed as a male and female gamete. They can be termed as a macro and micro gametes, है ना. और there may be different names given to them. उनको स्पर्म और ओवा दिया होगा या पोलन दिया होगा या ओवा दिया होगा या कुछ और दिया होगा. पोलन इज नॉट अ गैमेट, इज अ गैमेटोफाइट. इट्स हैविंग द सेल्स. ओके, मोर देन वन सेल. तो ये याद रखना. एंड जो भी तो हम जो कह रहे हैं वहाँ क्या है कि दैट इज द मेल से ऑब्टेन वालों को मेल गैमेट एंड फीमेल से ऑब्टेन वालों को फीमेल गैमेट कह सकते हैं. वेर इज क्लियर कट डिवीजन इज देयर बिटवीन द 2 टाइप ऑफ गैमेट. बट देयर आर नंबर ऑफ केसेज वेयर देयर इज नो डिवीजन पॉसिबल. ठीक है, इन केस ऑफ ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, वी हैव स्टडीड आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडिया, ये वर द गैमेट्स. ठीक है, तो गैमेट्स के अलग अलग नाम है अलग अलग जगहों पे. इट हार्डली मैटर्स, इसमें नाम रखो क्या फ़र्क पड़ रहा, हमारे को नाम में इज नॉट सो मच इंटरेस्ट. बट वॉट आई एम सेइंग इज दैट इज देयर आर गैमेट्स, बट देयर आर सम लोअर एल्गी इन विच बोथ द गैमेट्स आर लुकिंग अलाइक. तो ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो,
fusion of two gametes are required in sexual reproduction, which may come from one parent or they may come from two different parents. Okay, पढ़ते हैं क्या लिखा sexual reproduction. Sexual reproduction involves formation of the male and female gametes either from the same individual or from the different individual of the opposite sex. The gametes fuse to form zygote. Every sexually reproducing organism's life will always start from one cell. Asexual में गारंटी नहीं है. Asexual reproduction, we cannot say that they will always start their life from one. जरूरी नहीं है, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमने इतना बड़ा स्टेम काट दिया. ठीक है, it has got thousands of cells. So, as vegetative propagation is an exception in a sexually reproducing organism where life is not starting from one cell. अदर्स में ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन वन सेल ही होगा, बाइनरी फिजन वन सेल होगा, मल्टीपल फिजन में वन सेल होंगे, दैट इज द लाइफ विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वन सेल. बट फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, देयर आर नंबर ऑफ सेल्स कैन बी मोर. बट सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम देयर लाइफ फ्रॉम वन सिंगल सेल दैट इज कॉल्ड zygote. And zygote will be formed by the fusion of the male and female gametes. Okay, so zygote which is developed from the formed a new individual or new organism. It is an elaborate, complex and slow process as compared to the asexual reproduction. Asexual reproduction में कोई waiting time नहीं है. Number of times we are seeing, as we are seeing in the East, when that a baby is not fully detached from the body of the parent, यहीं पे लग रहा है और उसने भी बर्डिंग शुरू कर दिया. ये यहीं पे लग रहा है और उसने भी बर्डिंग शुरू की. यू आर ड्रॉन द डायग्राम इन क्लास 10. सीरीज ऑफ बर्ड्स आर फॉर्म. सो ये पेरेंट ये बच्चा ही है, बच्चे के भी बच्चे, बच्चे के भी बच्चे हो गए, एंड दे ऑल आर कनेक्टेड. ठीक है, सो इट इज पॉसिबल इवन ब्रांच विच इज अटैच्ड टू द पेरेंट, न्यू प्लांट कैन बॉर्न इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है. तो बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन द ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट. किसी एक पेरेंट जैसे नहीं होते. और ये भी नहीं कह सकते कि लेफ्ट हार्ट लाइक फादर एंड राइट हाफ, ये लेफ्ट हार्ट लाइक फादर एंड दिस लाइक मदर, और आगे वाला हिस्सा पापा जैसे पीछे वाले. ये भी नहीं कह सकते ऊपर वाला फादर हिस्सा निकालना. वी कैन नॉट इवन से दैट द चाइल्ड विल बी जस्ट अ ब्लेंड ऑफ फादर एंड मदर्स करेक्टर. ठीक है, फादर एक्सेप्शनली डार्क और मदर एक्सेप्शनली गोरी, और दोनों के करेक्टर बच्चा जो होगा उनके बीच के कलर का होगा, ऐसा कोई नहीं है. एक ही पेरेंट के बच्चे जो होते हैं वो हर तरह के मिलते हैं. पहला बच्चा इंटेलिजेंट, दूसरा खिलाड़ी भी मिलता है जो पढ़ता बेकार है लेकिन खेलने में अच्छा रहता है. एक गोरा एक काला भी मिलता है, एक बहुत अच्छा सिंगर और एक तोतला भी मिलता है. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डजंट से दैट व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स विल कम. वी कैन जस्ट इंश्योर बाय टेकिंग गुड पेरेंट्स कि भाई ये बच्चे अच्छे होंगे, लेकिन हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि बच्चे हमेशा अच्छे हों, है ना. So what a farmer does, he takes best of best bull and best of best cow and does the breeding between them in order to thinking that कि अगर उससे बुल होगा तो तगड़ा होगा और गाय होगी तो ज़्यादा दूध देगी, लेकिन उल्टा भी होता है कई बार. Okay, so sexual reproduction is just bringing variation which is not confirmed that what variation will be there. ओके, तो ये हो गई हमारी पहला पैराग्राफ हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं. क्या लिखा? अ स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड फंगाई शोज दैट थ्रू दो दे डिफर ग्रेटली इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. कोई क्या कहते हैं, ऐसा होगा जिसके अंदर टिश्यूज ऑर्गन सिस्टम कम बने हैं, कोई ऐसा होगा जो बिल्कुल वीक हैं, कुछ ऐसे होंगे जो ज़मीन पे रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं, किसी में क्या किसी में क्या. बट व्हेन इट कम्स टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द बेसिक प्रोसेस आर सेम. ठीक है, दैट इज दे विल हैव टू फॉर्म गैमीट, दे विल हैव टू फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, जाइगोट हैज टू अंडरगो एम्ब्रियोजेनेसिस एंड इट विल फॉर्म इंडिविजुअल. यही रहेंगे. ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि इंटरनल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी एक्सेट्रा कैन बी डिफरेंट, बट व्हेन इट कम्स टू द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सरप्राइजिंगली दे शेयर सिमिलर पैटर्न. लेट अस फर्स्ट डिस्कस द फीचर्स दैट आर कॉमन अमंग द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म.
तो भाई क्या क्या चीज़ें कॉमन है देखते हैं. ऑल द ऑर्गन हैव टू रीच टू अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ बिफोर मैच्योरिटी. तो अगर हम लाइफ स्पैन की बात करते हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म, तो दे लाइफ डिविजिबल इनटू 3 स्टेजेस. आपको पता है 3 स्टेजेस क्या होती है? बच्चा, जवान और बूढ़ा. हम ऐसे नहीं लिखेंगे. जो लाइफ स्पैन या लाइफ स्टेजेस हैं उसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 3 के अंदर, है ना. प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट. प्री रिप्रोडक्टिव को हम जुवेनाइल भी कहते हैं, बचपन. ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव हो गए. और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव दैट इज सीनेसेंस, बुढ़ापा. तो ये वो टाइम है राइट ऑन द डे 1 द बर्थ से लेकर के एंड जब वो सेक्सुअल मैच्योरिटी पे आ जाए, एडोलेसेंस में आ जाए, उस पीरियड को हम कहेंगे जुवेनाइल. तो देखिए ऑल द ऑर्गन हैव टू रीच टू अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ फ्लावरिंग प्लांट. तो आपने उगाया, बोले यार इसमें फूल आ जाना चाहिए अब तक, तो या आज आप प्लांट लाया है, उगा जर्मिनेट हो, बोले कल इसमें फूल आ जाएगा. नहीं, इट हैज़ टू वेट सर्टेन पीरियड ऑफ मैच्योरिटी. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक खरगोश लाए हैं, एक बकरी लाए हैं, एक गाय लाए हैं और दूसरे दिन ही बच्चा पैदा करेगी. नहीं, उसको कुछ टाइम तक मैच्योरिटी चाहिए होती है. तो ऑल द ऑर्गन that have to reach to a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. The period of the growth is called juvenile phase or vegetative phase. ठीक है, इसको प्लांट के केस में वेजिटेटिव कह देंगे, एनिमल्स के केस में जुवेनाइल कह देंगे, वैसे हम बचपन कह देंगे, जो भी आप कहना चाहते हैं. ठीक है, दिस फेज इज वेरिएबल ड्यूरेशन डिफर्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. द एंड ऑफ द जुवेनाइल वेजिटेटिव फेज देयर विल बी सर्टेन चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी. हम जान रहे हैं, है ना. ये आते ही जवानी आते के साथ ये मूछें आने लग जाएगी, एडम्स एप्पल आ जाएगा, आवाज़ भारी हो जाएगी, चेस्ट चौड़ा हो जाएगा, बाल आ जाएंगे चेस्ट पे, अंडर आर्म पे भी, क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास एंड सम चेंजेस टेक प्लेस इवन इन द गर्ल. ठीक है, इवन इन द प्लांट्स द फ्लावर्स विल स्टार्ट फॉर्मिंग एंड जो उनकी फिजिकल ग्रोथ जिस रेट से हो रही थी that will decrease and all. Okay, so yeah, now how long does it take marigold, rice, wheat, coconut, mango and other to come to flower? Marigold 2-3 महीने, 2 महीने भी नहीं होगा, 2-3 वीक मान लो. राइस 2 महीना तो कम से कम लगता ही है. वीट कम से कम 2 से 2.5 महीना. कोकोनट 5 to 6 ईयर मिनिमम, वो भी आजकल के हाइब्रिड वेराइटी, पहले वाले तो ज़्यादा टाइम लेता. मैंगो हम ऐसे पढ़ते आ रहे तो 12 साल बाद आता है मैंगो में, आम में फल. ठीक है, इन सम ऑफ द प्लांट वेयर द फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस, व्हाट वुड यू कॉल देम? एक बार हुआ, फिर फ्लावर आना बंद हो गया, अब अगले साल आएगा, क्या कहेंगे उसको? वापस जुवेनाइल हो गया, जुवेनाइल से रिप्रोडक्टिव हुआ, फ्लावरिंग हुआ, फिर बंद हो गया, वापस अच्छा हो गया? नहीं, एक बार जुवेनाइल स्टेज क्रॉस करके रिप्रोडक्टिव में आ गया तो रिप्रोडक्टिव ही कहलाएगा, वेदर इट इज एबल टू गिव राइज न्यू ऑफस्प्रिंग ऑफ फ्लावर और नॉट. ठीक है, सो ये आप याद रखना. नाउ ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज इन योर एरिया. डू दे फ्लावर इन द सेम मंथ एवरी ईयर? यस, मोस्टली. ठीक है, बट देयर आर सम प्लांट विच फ्लावर थ्रू आउट ईयर. कुछ होते हैं जो सर्दियों में फ्लावर कर. देयर आर सम विच यस सर्दियों में फ्लावर करने वाले जितने भी हमको सर्दियों में फल खाए हमने, मटर. ठीक है, तो ऐसे जो प्लांट हैं दे आर विंटर वाले प्लांट हैं. समर में अभी गर्मियाँ आ रही और फिर हमको क्या क्या तरबूज खाने को मिलेंगे, खरबूजे खाने को मिलेंगे, मैंगोज खाने को मिलेंगे. इनके फ्लावर अभी आते हैं तभी यही खा सकते हैं. ठीक है, सिंपल सी बात है. तो ये इनको हम कहेंगे सीजनल प्लांट. ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं मैंगो, एप्पल, जैकफ्रूट, दे आर अवेलेबल ओनली इन सर्टन सीजन. आर देयर सम प्लांट फ्लावर प्लांट विच फ्लावर थ्रू आउट ईयर? यस. ठीक है, और उनको क्या कहते हैं, ऑफिस फ्लावर, सदाफूली, ऐसे नाम देते हैं. तो दे आर फ्लावरिंग थ्रू आउट ईयर. But in the perennial species, it is very difficult to clearly define these phases.
ठीक है. A few plant exhibit unusual flowering phenomena. अंडरलाइन कर लीजिए, याद करना है ऐसा कैसे क्या. Some of the species of bamboo flower only once in their lifetime. Bamboo flowers only once in their lifetime, and that also after completing 50 to 100 years, depending on the species. किसी को 50 साल बाद में फ्लावरिंग हो जाता है, किसी को 70, किसी को 80, किसी को 100 years. But they will flower only once. After that खत्म. ठीक है, तो ये हो गया. And they will produce fruit and then they will die. Another plant, Stropilinthes kunthiana, नीलकुरिंथ. पिछले साल नहीं 2018 में ये फ्लावर कर रहा था लास्ट. तो मैं 2019 में मैं केरला में था. देन आई कुड सी सम ऑफ दीज फ्लावर. ठीक है, तो ये नीलकुरिंथ जो है वो 12 साल में एक बार फ्लावर करता है. इट फ्लावर्स वंस इन 12 years. So last when the book was written, it had flowered in September October 2006. After the 12 साल हो गए, तो मैं जब गया था, that is somewhere in the I was in first week of 2019. जैन के फर्स्ट वीक में मैं 2 या 3 तारीख को मैं केरला में था. एंड आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू सी सम ऑफ दीज फ्लावर्स. अगर मैं सितंबर अक्टूबर में जाता 18 में, तो प्रोबेबली आई कुड हैव सीन द एंटायर वैली कवर्ड बाय दीज फ्लावर्स. तो दे आर फ्लावर ओनली वंस इन केरला. उनके बीज गिरेंगे, फिर वो प्लांट आएंगे, फिर वो 12 साल बाद फ्लावर करेंगे. सो ये ऐसा हो गया था. ठीक है. द masses of the flowering transform large tract of the hilly areas of Kerala, Karnataka, Tamil Nadu into blue stretches that attract number of tourists from world over. तो ये जो प्लांट है स्टोबिलिस कुंथियाना, ये याद रखिएगा. एंड उसको भी याद रखना बिकॉज दे आर फ्लावरिंग. द बैम्बू इज फ्लावरिंग ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम. Stropilinthes is not that it will flower only once time, but once in lifetime. वो करेगा तो बहुत बार, लेकिन in gap of 12 years. ठीक है. So these are exceptions. So that is why their names are given here. Okay. तो ये हो गया. I think this is enough for us for today. Next paragraph से हम कल पढ़ेंगे. कल मैं क्लास नहीं लूँगा because tomorrow is my bio practical. So be at ease. Thank you.